axis. Okay, so in a molecule there may be more than one symmetry axis. So ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किसी मॉलिक्यूल में सिर्फ एक ही एक्सिस प्रेजेंट होगा. देयर मे बी मोर देन वन सिमेट्री एक्सिस. कोई अगर C3 एक्सिस प्रेजेंट है तो देयर मे बी C2. इफ देयर इज C6 एक्सिस प्रेजेंट है तो देयर मे बी C2 C3 ऐसी एक्सिस हो सकती है. So in a molecule there may be more than one symmetry axis. Axis having maximum or highest value is known as principal or rotational axis. An axis having lower value of n than principal axis is called subsidiary axis. अगर कोई दो एक्सिस प्रेजेंट है और उसमें जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, सपोज देर आर C6 एंड C2, तो C6 में क्या है, n की वैल्यू ज़्यादा है, दैट इज 6, एंड C2 में n की वैल्यू कम है, दैट इज 2. सो जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी n की, दैट विल बी नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस, और जिसमें n की वैल्यू कम होगी दैट विल बी नोन एज subsidiary axis. For example, if we are having C4 and C2, then principal axis will be C4, not C2, and C2 will be known as subsidiary axis. Why? Because there is less value of n2. Here, in case of C4, the n value is 4. In case of C2, n value is 2. That's why C4 will be principal axis and C2 will be subsidiary axis. So that thing you have to keep in your mind, that in a molecule there may be more than one axis, symmetry axis. An axis with highest value of n will be known as principal axis, and lowest value of n, that will be known as subsidiary axis. Okay, so principal axis is only one, while subsidiary axis may be more than one. So this is the very important thing, that principal axis केवल एक ही हो सकता है किसी भी मॉलिक्यूल में. प्रिंसिपल एक्सिस केवल एक ही होगा, while subsidiary axis may be more than one, एक से ज़्यादा भी हो सकती है. ओके, प्रिंसिपल एक्सिस हमेशा एक ही होगा, बट सब्सिडियरी एक्सिस मे बी मोर देन वन, यानी कि एक से ज़्यादा भी हो सकती है. एंड most important thing, that subsidiary axis is always perpendicular to principal axis. This is the condition कि subsidiary axis क्या होनी चाहिए, perpendicular होनी चाहिए principal axis के. अगर कोई एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर नहीं है तो that will be not known as subsidiary axis. So कंडीशन क्या हो गई? फर्स्ट कंडीशन, सब्सिडियरी एक्सिस एक से ज़्यादा भी हो सकती है. सेकंड, सब्सिडियरी एक्सिस हमेशा परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी? जिसमें n की वैल्यू सबसे ज़्यादा. सब्सिडियरी एक्सिस किसमें कौन सी? जिसमें n की वैल्यू कम. So these points you have to keep in your mind. So for example, this is H2O molecule and we are rotating this molecule through Z एक्सिस. दिस जो आपको एरो दिख रहा है, ये जो एरो दिख रहा है, इसके अगेंस्ट अपन वी आर रोटेटिंग दिस मॉलिक्यूल विथ 180 डिग्री रोटेशनल एंगल. अब ये तो आपको पता ही है कि अपन ने 180 डिग्री क्यों लिया, बिकॉज आफ्टर रोटेशन वी शुड गेट इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन, and with the 180 degree only we will get equivalent orientation. That's why we have taken here 180 degree, that is rotational angle in case of H2O. So this is H1 HA molecule and this is HB molecule. When this molecule is being rotated through Z axis, then we get this kind of structure. This resemble to first one. That's why this is equivalent orientation of, or equivalent structures of original structure. Okay, so this in first case, again see again, this is the Z axis and Z axis के अगेंस्ट अपन ने इसको क्या करवाया, रोटेशन करवाया, राइट, और अपने को इक्विवेलेंट फॉर्म मिली है. बट अगर यही मॉलिक्यूल है और अपन एक्सिस यहाँ से पास करते हैं, ओके, तो क्या होगा, अगर अगेन इफ वी रोटेट this water molecule through this axis, then we will get this kind of structure.
यानी कि दोनों H क्या हो जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे और ऑक्सीजन नीचे आ जाएगा। इट मीन्स दोनों एक जैसे नहीं दिख रहे हैं, उल्टे हो गए। तो दिस दैट्स व्हाई दीज आर नॉट इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन और दीज आर नॉट इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ water molecule. Clear? So no any other axis, only C2 principal axis. So in case of water molecule, what can we consider? That there is only one axis which is principal. अपन दूसरी एक्सिस कुछ डाली है, लेकिन दूसरी एक्सिस से वी आर नॉट गेटिंग इक्विवेलेंट फॉर्म। दैट्स वाई यहाँ पे कोई दूसरी प्रिंसिपल एक्सिस प्रेजेंट नहीं है, या दूसरी कोई C2 या फिर दूसरी कोई subsidiary axis is not present in case of water molecule. There is only one axis that is along to z direction or on z axis. So there is only one axis that is C2 and that is principal axis. इस water molecule में कोई भी subsidiary axis present नहीं है. But if we consider the molecule BF3, ये कोई एक BF3 molecule है आपके सामने, इसमें अगेन अपन बोरोन्स के थ्रू जेड एक्सिस पे एक एक्सिस डाल रहे हैं। इस एक्सिस के अगेंस्ट अपन इसको रोटेट करना है विथ 120 डिग्री एंगल। 120 डिग्री एंगल के थ्रू इस रोटेशन, इस एक्सिस के थ्रू we have to rotate this BF3 molecule having 120 degree rotational angle. Okay, so we are getting equivalent form. Okay, fine. Then ये कौन सी एक्सिस कहलाएगी? दिस इज C3 एक्सिस बिकॉज द रोटेशन एंगल इज 120 डिग्री, दैट्स व्हाई इट इज ओके। सो रोटेशन एंगल कितना है इसमें? 120 डिग्री, एंड दैट्स व्हाई ये कौन सी एक्सिस हो गई? C3 एक्सिस, राइट। नाउ इस सी अगेन दिस मॉलिक्यूल, अगर अपन कोई सब्सिडरी एक्सिस F1 एंड बोरोन एटम के थ्रू पास करते हैं, कोई भी एक्सिस सिमेट्रिक एक्सिस, इफ वी पास थ्रू बोरोन एंड F1 एटम, ओके, एंड वी रोटेट विथ 180 डिग्री एंगल, ओके, इन दिस केस क्या हो रहा है? अपन ने C3 एक्सिस लगाया है ओनली, जो कि पास दैट पासेज ओनली बोरोन एटम, बट इन दिस केस with 180 degree angle we have put an imaginary axis through F1 and boron atom, और अगर उसके ऊपर रोटेशन करवा रहे हैं 180 डिग्री का, तो अपने को क्या मिल रहा है? सेम मॉलिक्यूल मिल रहा है, एक जैसा मिल रहा है। जस्ट क्या हुआ है? F2 has taken the position of F3 and F3 has taken position the F2, बट रिसेंबल एक जैसे ही दिख रहे हैं दोनों। इट मीन दिस इज इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन, और दिस एक्सिस को अपन वी कैन कंसीडर दिस एक्सिस। व्हाई? क्यों कंसीडर कर सकते हैं? क्योंकि इसके थ्रू रोटेशन करवाने पर वी आर गेटिंग इक्विवेलेंट फॉर्म, दैट्स व्हाई वी कैन कंसीडर दिस एक्सिस। बट वाटर के केस में क्या हो रहा था? जब ये अपन एक्सिस डाल रहे थे, माउस कर्सर पे जो आपको दिख रहा है, ओके, सो अपन ये समझ चुके हैं ऑलरेडी। Okay, so if you consider BF3 molecule and we pass an axis through boron atom in Z direction, then we will get equivalent orientation like this, and we rotate this molecule with 120 degree angle. That's why this axis is C3 axis. And if we put an imaginary axis through F1 and boron atom, then again if we rotate this molecule through this axis with 180 degree angle, then we will get this structure, and this structure is equivalent to first structure. Okay, so that's why we can consider this axis as symmetric axis. And since we have taken here 180 degree rotation angle, that's why this axis will be known as C2. So there you can see that in BF3 there is C3 axis, and in BF3 there is C2 axis also. And again, if we pass an imaginary axis through F2 and boron atom, in first case we have passed through F1 and boron atom. Now we are passing through F2 and boron atom, and again if we rotate this molecule through this axis with 180 degree angle, then we will get the same, not same but equivalent structure, not identical but equivalent structures like this.
Okay, just F1 has replaced F3 and F3 has replaced F1, but both are symbols, that's why this is equivalent. So we can again we can also consider this axis, and since here is 180-degree angle, that's why it is C2 axis. Now again, if we pass an imaginary axis through F3 and boron atom, one by one we are passing. So if we pass an axis through F3 and boron atom and rotate this molecule against this axis with the same 180-degree angles, then we will get equivalent structure. So you can see here both structures are resemble to each other. Just be F2 has taken F1's position and F1 has taken F2's position, but both are resembled. That's why these are equivalent structure to each other. So again, this axis is C2. Why? Because we have taken 180-degree rotational angle. Okay, so now you can see that in BF3 molecule there is C3 axis and C2 and C2 means 3 C2 axis are present. So what can we see? So we can see that this is C3 axis through boron atom only. There is one C2 through F and boron atom only. There is another C2 through F and boron atom. Then again there is C2 through third F fluorine and boron atom. So there are three C2. Okay, so there are three C2 and one C3 axis are present. And since in case of C3 there is higher value of n, that is 3, and in C2 there is n is equal to 2 only. So that's why C3 will be known as principal axis, while all these C2 axis will be known as subsidiary axis. ओके C3 क्या हो गई इसमें प्रिंसिपल एक्सिस, बट C2 क्या हो गई सब्सिडरी एक्सिस. क्यों? क्योंकि C2 में n की वैल्यू कम है, दैट्स व्हाई इट इज सब्सिडरी एक्सिस, एंड C3 में n की वैल्यू ज्यादा है, दैट्स व्हाई इट इज प्रिंसिपल एक्सिस. एंड वन मोर थिंग, प्रिंसिपल एक्सिस इज ऑलवेज वन. सो आप मॉलिक्यूल देख सकते हो इसमें प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, C3 सिर्फ एक ही है, बट सब्सिडरी एक्सिस कैन बी more than one. That's why there are three subsidiary axes present in BF3 molecule. Now if we consider the examples, this one tetracyanonickelate, and if we rotate this molecule with 90-degree angle, so we can have equivalent orientation. Okay, and if we rotate this molecule 4 times, then we will have identical structure as we have discussed earlier. Now see the C2 axis present in this molecule. So one C2 axis can be present through nickel in 2 cyanide. Okay, दोनों को कलर किया हुआ देखिए आप, येलो कलर एंड ब्लैक कलर साइनाइड. वन एक्सिस कैन बी थ्रू ग्रीन साइनाइड एंड रेड साइनाइड एंड निकल, तीनों एटम के थ्रू पास हो सकती है. C2 मीन्स 180-डिग्री रोटेशन. वन एक्सिस C2 की है जो किसके थ्रू पास होती है, सिर्फ निकल एटम के थ्रू, बट इट इज नॉट लाइक C4. अब आप जैसे आप यहाँ तो देख रहे हो कि C4 भी निकल थ्रू के एटम पास हो रही है, और दिस C2 इज आल्सो पासिंग थ्रू निकल सेंटर. ओके, बट दोनों डिफरेंस है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका मोबाइल है, ओके, मोबाइल के चारों कोनों पे साइनाइड है एंड सेंटर में निकल है. फॉर एग्जांपल समझ लो आप इसको कि मोबाइल है, मोबाइल के चारों कॉर्नर पे क्या है, CN प्रेजेंट है एंड निकल इसके सेंटर में है. सो ऊपर की डायरेक्शन की से अगर आप निकल के थ्रू एक्सिस पास करोगे मोबाइल में, जैसे मोबाइल के सेंटर में क्या है, निकल है, तो ऊपर की डायरेक्शन से पास करोगे तो ये सिर्फ सेंटर में फिट हो रहा है, राइट. सो दैट्स व्हाई इट इज C4 एक्सिस. अब इसी में अपन को C2 लगानी है तो साइड वाइज लगाइए आप, जैसे दो साइनाइड के बीच में दोनों कॉर्नर जो आपको दिख रहे हैं मोबाइल के, उसके थ्रू और निकल के थ्रू. ओके, तो उसके थ्रू और निकल के थ्रू लगाओगे आप, सो दैट इज C2 एक्सिस.
so there are four C2 axes present in tetracyanonickelate. So there are four C2 present in tetracyanonickelate molecule और एक C4 एक्सिस प्रेजेंट है. सो इसमें क्या है, एक तो C4 एक्सिस हो गई और चार क्या हो गई, C2 एक्सिस प्रेजेंट हो गई. तो दोनों में प्रिंसिपल एक्सिस किसको बोलेंगे, जिसकी n की वैल्यू ज्यादा है. सो C4 इज प्रिंसिपल एक्सिस एंड C2 इज subsidiary axis. Now see the benzene molecule. There are C6 axis present, passes through center of the molecule. C6 axis present होगी और किसके थ्रू पास होगी, ये सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के सेंटर से. इसके थ्रू अगर अपन इसको रोटेट करवाएंगे तो अपने को क्या मिलेगा, एक इक्विवेलेंट फॉर्म मिलेगी. ओके, सो एंड C2 कहाँ से प्रेजेंट हो सकती है इसमें, दिस सेंटर 1 एंड 4, ये एक C2 हो सकती है. सेंटर 2 एंड 5, एक C2 यहाँ से हो सकती है. सेंटर 3 एंड 6, एक C2 यहाँ से हो सकती है. एंड एक C2 कहाँ से हो सकती है, एक 1 एंड 2 के बीच से. ये जो माउस दिख रहा है आपको, ये वाला कर्सर आप ध्यान से देखना, ये एक C2 प्रेजेंट हो सकती है. इसी तरह एक C2 यहाँ से प्रेजेंट हो सकती है, एक C2 यहाँ से प्रेजेंट हो सकती है. ओके, सो देयर मे बी 6 C2, यानी कि यहाँ पे 6 C2 प्रेजेंट है और एक 6 C2 प्रेजेंट है और एक C6 प्रेजेंट है. तो C6 क्या हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस, और 6 C2 क्या हो गई, सब्सिडियरी एक्सिस. एंड वन मोर थिंग कि ये जो आपको दिख रही है C2, ये क्या सारी परपेंडिकुलर है C6 के. ओके, जैसे आप फॉर एग्जांपल अपने हाथ को फैला लो, हाथ को फैलाने के बाद आपको 5 कॉर्नर दिख रहे हैं, पांचों अंगुलियां दिखने से क्या होगा, अब आप पेन को सीधा खड़ा रखो, हाथ पेन जो ले लो, एक पेन या पेंसिल, उसको सेंटर के ऊपर एकदम स्ट्रेट रखो. तो वो क्या हो गया, इन पांचों अंगुलियों के परपेंडिकुलर हो गया. अब पांचों अंगुलियों के परपेंडिकुलर हो गया मतलब पांचों अंगुलियां क्या हो गई, ये तो C2 एक्सिस हो गई सब्सिडरी, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी हो गई, आपने हथेली के सेंटर से अगर पेंसिल पास कर रहे हो तो वो क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस. द सेम थिंग हैपेंस विद बेंजीन मॉलिक्यूल, कि सेंटर से आपने कोई एक एक्सिस पास की, दैट इज C6, और ये दूसरी एक्सिस जो परपेंडिकुलर है वो क्या हो गई, C2 एक्सिस. सिमेट्री एक्सिस में भी इन्फिनिट, सिमेट्री एक्सिस क्या हो सकता है, इन्फिनिट भी हो सकती है. यहाँ पे जैसे C6 है, C2 है, C4 है, C3 है, तो उससे इन्फिनिट एक्सिस भी हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल HCl और एनी डाई एटोमिक लीनियर मॉलिक्यूल. डाई एटोमिक कोई भी लीनियर मॉलिक्यूल होगा, या कोई भी लीनियर मॉलिक्यूल होगा, उसमें जो एक्सिस होगी सिमेट्री एक्सिस, डेट वुड बी इन्फिनिट. जैसे ये HCl है, अब HCl में अपन वी कैन पुट एन इमेजिनरी एक्सिस थ्रू H एंड Cl एटम. H और Cl एटम के बीच से कोई एक्सिस पास कर सकते हैं, देन उसको अपन रोटेट करवा सकते हैं, कितने ही बार रोटेट करवा सकते हैं. तो ये क्या कहलाएगी, सिमेट्रिक एक्सिस. कितने भी रोटेट करवाओ उसको क्या मिलेगा आपको, इन्फिनिट equivalent forms. That's why it is C infinity. Okay, so symmetric axis may be infinity. हो गया. नाउ अब ये जितनी भी आप, जैसे कोई मॉलिक्यूल है आपके पास, कोई भी अननोन मॉलिक्यूल दे दिया, तो आप जब व्हेन विल यू गो फॉर सर्चिंग ऑफ C2 और सब्सिडरी एक्सिस, तो आपको थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है. तो उसके लिए कुछ एक ट्रिक्स होती हैं, उनको ध्यान में रखने का. इफ subsidiary axis present, then total number of subsidiary axis may be 0 or may be value of n in principal axis. इसका मतलब ये है कि अगर कोई आपके पास फॉर एग्जांपल इफ यू आर हैविंग C3 principal axis, I am talking about principal axis. So if you are having C3 principal axis, so there are two possibilities, that there may be 0 C2, यानी कि वहां पर कोई C2 प्रेजेंट नहीं होगी, या फिर 3 नंबर ऑफ C2 प्रेजेंट होगी. ये 3 कहां से आया, ये 3 यहां से आया, C3. तो लिखा है ना 0 और वैल्यू ऑफ n इन प्रिंसिपल एक्सिस. सो इफ यू आर हैविंग C3 प्रिंसिपल एक्सिस, देन यू कैन हैव
0C2 और 3C2। अब 3C2 कब होगी, 0C2 कब होगी, जस्ट यू हैव टू सी, अगर आपको एक भी C2 नजर आ जाती है किसी मॉलिक्यूल में, C2 मीन सब्सिडरी एक्सिस, अगर आपको एक भी C2 नजर आ जाती है सब्सिडरी केस में, आई एम टॉकिंग अबाउट इन केस ऑफ सब्सिडरी एक्सिस, अगर सब्सिडरी एक्सिस C2 एज सब्सिडरी एक्सिस अगर आपको नजर आ जाती है तो उसमें आपको सारी एक्सिस देखने की जरूरत नहीं है, जस्ट यू कैन राइट 3C2 प्रेजेंट। अगर एक भी C2 नजर नहीं आती इट मीन 0C2, और एक भी C2 नजर आ जाती है इट मीन देयर इज 3C2 विल बी प्रेजेंट। फॉर एग्जाम्पल इन बी एफ थ्री का एग्जाम्पल अभी अपन देख चुके हैं, इसमें एक क्या थी, प्रिंसिपल एक्सिस C3 थी और एक C2 भी प्रेजेंट थी, तो टोटल नंबर ऑफ C2 कितनी थी उसमें 3, तो अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं कि देयर विल बी 3 number of C2 in BF3 molecule. For example, again, if you are having C4 principal axis, तो अगेन यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी होगी, आपके पास हो सकता है कि 0C2 प्रेजेंट हो और 4C2 प्रेजेंट हो। जैसे ये आपने टेट्रासाइनोन्यूक्लिएट देखा है आपने अभी ये एग्जांपल, इसमें क्या है, एक तो C4 प्रेजेंट है और आपको एक C2 नजर आ गई, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ C2 कितनी थी यहाँ पे 4, तो अपन डायरेक्टली लिख सकते हैं कि 4 नंबर ऑफ C2 विल बी प्रेजेंट, बट कंडीशन क्या है, आपको एक भी C2 नजर आनी चाहिए, अगर एक भी C2 नजर नहीं आ रही है तो दैट मीन्स देयर आर 0 नंबर ऑफ C2 प्रेजेंट। फॉर एग्जाम्पल PTCl4 कोई मॉलिक्यूल है, उसमें C4 एक होगी और अगर एक भी C2 प्रेजेंट है तो अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं कि देयर वुड बी 4C2। अब अगर कोई C2 भी प्रिंसिपल एक्सिस है, फॉर एग्जाम्पल वाटर मॉलिक्यूल में क्या होता है, C2 इज द प्रिंसिपल एक्सिस, तो वहां पर भी दो पॉसिबिलिटी है कि 0C2 प्रेजेंट हो सकती है या 2C2 प्रेजेंट हो सकती है, बट अपन ने डिस्कस कर चुके हैं, अभी अपने लास्ट स्लाइड में देखा था कि जो H2 मॉलिक्यूल में उसमें Z एक्सिस पे C2 प्रेजेंट होती है, बट अपन दूसरी एक्सिस पे C2 डालते हैं तो क्या है, इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन, वी वर नॉट गेटिंग इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन, it means there is no any other C2 present in water molecule, so there is only one C2 present, so we can see using this trick कि C2 प्रेजेंट है और दूसरी कोई सब्सिडरी एक्सिस प्रेजेंट नहीं है। बट ये जो ट्रिक है इट इज नॉट कंसिडर फॉर लीनियर मॉलिक्यूल, यानी कि HCl है, CO2 है, दीज आर लीनियर मॉलिक्यूल्स, तो ये ट्रिक लीनियर मॉलिक्यूल के लिए कंसिडर नहीं होगी। लीनियर मॉलिक्यूल के अलावा जितने भी मॉलिक्यूल है यू कैन कंसिडर दिस ट्रिक ऑन दोज मॉलिक्यूल्स दोज आर not linear, but on linear molecule this trick will not be applied।